Welcome SVPH to presentation on chapter number 5 limericks, and this is part 3 of our presentation. This is our final presentation. So students, in our previous presentation we completed till here. Now let's continue further. Now do you see these tables over here? This table and this table. You know what is that? This is basically a sentence structure, syntax. You know how you will make sentence using shall, will, shall not, will not, or going to. So that we will learn with the help of these tables. So this is the first table and we will make sentences using will or shall. So ये जो shall और will है ये यूज होता है फ्यूचर टेंस के लिए, राइट? सो you try to focus on this sentence. What is this? I will not tell lies. मैं झूठ नहीं बोलूँगा. So ये सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? अफर्मेटिव विद सब्जेक्ट. So first subject, then will or will not. For example, I will not tell lies is one and I will tell lies. So दोनों ही केसेस में क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले, then will or will not, and then verb. What is the verb here? Tell. So you remember this structure. Now let's go back to the table. So सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं बच्चों? Subject. And these are the subjects. What are the subjects? He, she, it, they, then you or name, then I and we. These are the subjects. And you already know which is first person, which is second person, which is third person. Let us repeat it once more. He, she, it. They are third person singular. They is third person plural. You is second person singular and second person plural, both. Then I, first person singular, and we, first person plural. So in any sentence, first of all you will use subject. Okay, so subject क्या है? He, she, it, they, you, I or we or name. Then after subject, will or will not. So will or will not किन किन सब्जेक्ट के साथ में आता है? If you see this table properly, you can see. See, यहाँ तक जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ में क्या आता है? will और will not. तो यहाँ तक कितने सब्जेक्ट हैं? He, she, it, they, you. इनके साथ में will या will not ही आएगा, right? And with I and we, these two subjects, we can use will or shall, will not और shall not. तो सिर्फ I और we के साथ में आप shall भी यूज कर सकते हैं, will भी यूज कर सकते हैं, shall not और will not. Clear? So what is the sentence structure? Subject, then will or will not, and for I and we, shall or shall not, or will or will not, and then verb. What is verb? Action. So now let us try to make one sentence. मैं स्कूल जाऊंगा. मैं कल स्कूल जाऊंगा. So it is future tense. Subject is I. So first you will use subject I. Then I के साथ में either you can use shall or you can use will. Normally we use will. So I will, then verb go. So I will go to school tomorrow, and whatever is remaining that comes last. So this is the sentence structure with will or shall. Now अगर हम going to the sentence बना रहे हैं, जैसे I am going to school tomorrow, तो I am going to go to school tomorrow. Okay, let us see. Again, सबसे पहले क्या आएगा? Subject,
नाउ सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज, एम, आर प्रेजेंट में। सो विद सर्टेन सब्जेक्ट्स वी यूज इज। इज किस किस के साथ में आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आप देखो यहाँ पे इसी ये जो लाइन है, मतलब यहाँ तक जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में इज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सो ही, शी और इट, इनके साथ में क्या आएगा? इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर। देन फॉर दे एंड यू, ये दो सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू सी, यू फॉलो दिस लाइन वेरी केयरफुली, ओके। सो दे एंड यू, इनके साथ में हम यूज करते हैं आर। ये क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, एंड यू है सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल, दोनों के साथ में आएगा आर। एंड विद आई वी विल यूज एम, एंड विद वी ऑल्सो वी विल यूज आर। सो क्लियर? आपको पता है कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, किस सब्जेक्ट के साथ। सो व्हाट इज सब्जेक्ट, then is, am, are, then going to or not going to, then verb. So let us take one example. Going to से बनाते हुए sentence, subject it, okay. So it subject लिया and it के साथ में क्या आएगा? is, helping verb. So it is, then going to, it is going to, then verb. What is verb? Rain. So it is going to rain. And not going to अगर यूज करते तो it is not going to rain. Clear? Now interrogative. If we are making interrogative sentence, then what happens? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। सो ये जो इज, एम, आर है ना, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। सो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट। सेकेंड में क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, एंड देन यू विल यूज गोइंग टू और नॉट गोइंग टू। सो हेयर देयर इज अ स्लाइट करेक्शन, यू कैन नॉट मेक सेंटेंस लाइक दिस यूजिंग विल, शैल, विल नॉट, शैल नॉट। आप सिर्फ ऐसे सेंटेंस बना सकते हो गोइंग टू और नॉट गोइंग टू यूज करते हुए। सो इंटरोगेटिव में क्या है? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो क्या आज बारिश आने वाली है? ये सवाल हुआ ना, आज बारिश आने वाली है, ये तो क्लियर है, इट इज गोइंग टू रेन। क्लियर? नाउ आप सवाल पूछ रहे हो क्या आज बारिश आने वाली है? सो इंटरोगेटिव। सो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आएंगे। सो क्या आज बारिश आने वाली है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। सो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इज से, देन सब्जेक्ट क्या है इसमें? इट। सो इज इट गोइंग टू रेन? सो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिंटेक्स। सिमिलरली क्या आज बारिश नहीं आने वाली है? सो अगेन हेल्पिंग वर्ब इज इट नॉट गोइंग टू रेन? ओके, सो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले, सबसे पहले इज, देन सब्जेक्ट इट, देन गोइंग टू और नॉट गोइंग टू, एंड देन वर्ब। क्लियर? Now let's complete this question. Fill in the blank using will, will not, shall and shall not. So tomorrow I dash go to the dentist. तो यहाँ पे आप I के साथ में will भी यूज कर सकते हो और shall भी यूज कर सकते हो। So I prefer you use will. Tomorrow I will go to the dentist. Next one, Pinky is ill. She dash participate in the प्ले। तो अब जब पिंकी इल है तो वो प्ले में पार्टिसिपेट करेगी? शी विल नॉट ना, सो शी विल नॉट, शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्ले। नंबर 3, डैश आई गो एंड गेट यू समथिंग। सो आई के साथ में क्या यूज करेंगे यहाँ पे आप? शेल। शेल आई गो एंड गेट यू समथिंग, मतलब क्या मैं जाऊं और कुछ आपके लिए लेके आऊं? शेल आई गो एंड गेट यू समथिंग, मतलब क्या मैं जाऊं और आपके लिए कुछ लेके आऊं? दैट इज द मीनिंग ऑफ शेल आई गो एंड गेट यू समथिंग।
एंड इट इज अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब शेल से, और सब्जेक्ट बाद में आया. नंबर 4, गुन्नू डैश ब्रिंग सैंडविचेस फॉर द पिकनिक. सो गुन्नू क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है ना. सो गुन्नू विल, गुन्नू जो है वो सैंडविचेस लेके आएगा पिकनिक के लिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. नंबर 5, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल? क्वेश्चन मार्क. क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है? डैश यू प्लीज गिव मी वन. सो यू के साथ में क्या आएगा? विल. यू विल यूज विल. सो विल यू प्लीज गिव मी वन. Will you please give me one? Clear? So now C2. Fill in the blanks using is, am, are, going to, not going to, along with the given verb. Number 1. This dash fun. आपको यहाँ पे going to, not going to और is, am, are आपको fill करना है. So this के साथ में क्या आएगा? Helping verb आएगी is. So this is, then going to, this is going to, then what is the verb here? Be. So this is going to be fun. What is the sentence? This is going to be fun. Now B का हिंदी में मतलब क्या होता है? होना. So मतलब ये तो फन होने वाला है. यहाँ पे तो मजा आने वाला है, you know. So B मतलब होना. So what is the sentence? This is going to be fun. Now the next one, we dash my grandparents this Saturday. और वर्ब क्या है? meet. तो आपको सेंटेंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, गोइंग टू नॉट गोइंग टू यूज करना है और वर्ब यूज करनी है. तो आप क्या करेंगे? वी के साथ में आएगा आर. सो वी आर गोइंग टू. सो व्हाट विल यू राइट? वी आर गोइंग टू, देन वर्ब. व्हाट इज द वर्ब? मीट. सो we are going to meet. Okay, we are going to meet our grandparents. We are going to meet my grandparents this Saturday. Clear? Now the next one, number 3. Aditya is dash to Goa this summer. So Aditya is already यहाँ पे helping verb आ गई ना, is. तो आपको सिर्फ going लिखना है. Aditya is going to go. ओके, आदित्य इज गोइंग टू गो टू गोवा. अब यहां पे आप देखिए, आप बोले कंफ्यूजन है. गोइंग दो, मतलब गो जो है 2 बार आ गया. एक तो गोइंग टू के साथ में और एक उसके बाद अगेन. यू हैव टू बी केयरफुल हेयर. गोइंग टू मतलब समथिंग अबाउट टू हैपन, और यहां पे जो सेकेंड गो आया है दैट इज एज अ वर्ब, बिकॉज हेयर व्हाट इज द वर्ब? गो. So what is the sentence? Aditya is going to go to Goa this summer. इसका मतलब आदित्य गोवा जाने वाला है इस समर. अगर आपने सिर्फ लिख दिया आदित्य इज गोइंग टू गोवा, दैट मीन्स आदित्य ऑलरेडी गोवा के लिए रास्ते में है, तो फिर वो कंटिन्यूस हो गया, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूस. सो बी केयरफुल हेयर. आदित्य इज गोइंग टू गो टू गोवा मतलब आदित्य गोवा जाने वाला है दिस समर. नाउ नेक्स्ट वन, I am dash there again, I promise. So I am not going to go. Okay, I am not going to go there again, I promise. So ये भी सेम सेंटेंस है नंबर 3 की तरह. So यहाँ पे go क्या है? एज अ वर्ब आया है, एंड गोइंग टू जो है वो यूज हुआ है किसी काम के लिए विच इज अबाउट टू हैपन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर अगेन, आई प्रॉमिस मतलब मैं वहाँ पे कभी नहीं जाऊँगा, वहाँ पे मैं कभी नहीं जाने वाला हूँ, दैट आई प्रॉमिस. ओके, नाउ नंबर ई. सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू बिगिन अ कन्वर्सेशन. किसी भी कन्वर्सेशन को हम कैसे बिगिन करते हैं? हेलो, हाउ आर यू, हाय, हाउ आर यू, लाइक दैट वी स्टार्ट कन्वर्सेशन, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आपने किसी से पूछ लिया हाय हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, उसने बोल दिया ओके आई एम फाइन थैंक यू. उसके बाद कन्वर्सेशन क्या होगी? बंद हो जाएगी. यू हैव टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, राइट? आपको कन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क टू अ न्यू पर्सन? You can ask, what do you do?
वॉट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं, वट इज योर जॉब. सो दैट मीन्स यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज देयर जॉब और ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन. ऑक्यूपेशन एंड जॉब both are same. So if you ask a doctor, what will doctor say? I'm a doctor, right? What will doctor say? I'm a doctor. Now let us see few of the occupations or job, and you try to speak few lines, or you try to write few lines about them, and that you will write on your own. Lawyer, LAWER. You know what is lawyer? लॉयर होता है वकील, एडवोकेट, जो कोर्ट में केसेस फाइट करते हैं. many of you may be having your parent working as lawyer. Then next one, electrician. You know what is electrician? जो इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग है ना, इलेक्ट्रिकल जो वायर्स हैं और जो केबल्स हैं या जो सॉकेट्स हैं उनकी फिटिंग करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिशियन. देन नर्स. यू नो व्हाट इज अ नर्स? व्हाट इज दिस? ऑर्निथोलॉजिस्ट. व्हाट इज ऑर्निथोलॉजिस्ट? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. ORNI, ऑर्नी, THO, थॉ, LO, लॉ, GIST, gist. So try to speak slowly. Ornithologist. Ornithologist. Now, scientist. You know what is scientist? Then environmentalist. Okay? ENVIRONMENT, environment, and LIST, environmentalist. ये कौन होते हैं? जो एनवायरनमेंट के बारे में काम करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में काम करते हैं. जो हमारा पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए, एनवायरनमेंट जो है वो सेव किया जाए, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एनवायरनमेंटलिस्ट. देन अकाउंटेंट. नो व्हाट इज अकाउंटेंट? अकाउंटेंट होते हैं जो पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, जो अकाउंट को जो है अकाउंट को मैनेज करते हैं. सो हर ऑफिस में, हर स्कूल में देयर इज वन अकाउंटेंट, एटलीस्ट वन अकाउंटेंट. Then mason, MASON, mason. Mason is the one who builds your house. जो brick work करता है ना, ईंट वगैरह से, पत्थरों से जो अपना मकान बनाता है, जिसको आप बोलते हो ना मिस्त्री, that is mason. Then waiter. You know what is a waiter? All of you go to a restaurant and you know what is a waiter. Then actor. You know what is an actor? Engineer. You know what is an engineer? Author. You know. Author is the one who writes the book. Then teacher, you know very well what is a teacher. Then driver, you know, and chef, CHEF. Chef कौन होता है? जो रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, cook. Clear? So now you can write about them. Now the next one is about, what is that? Syllables. So syllables क्या होता है? Basically कोई भी जो word होता है ना, that you can split in two or more parts, and then it is easy to read. For example, rabbit. So rabbit is made of two small words, rab-bit. Okay, so there are two syllables, rab with the vowel A and bit with the vowel I. So how will you write? ऐसे वर्ड्स को कैसे लिखेंगे आप? rab स्लैश बिट. रैब एक हो गया, देन स्लैश बिट. सो दिस इज कॉल्ड syllables. So like that you are given few words, try and divide the words into syllables. इनको आपको ट्राई करना है syllables में डिवाइड करने का, and you will use this slash. It is called slash to write this. So for example, say chin. तो chin को आप लिख सकते हैं chi slash न, चिन. रेस्क्यू. तो रेस्क्यू को रेस, RES, रेस स्लैश CUE. ग्लोइंग. सो ग्लोइंग को आप लिख सकते हैं ग्लो स्लैश इंग, ग्लो इंग. देन बास्केट, बास स्लैश केट. देन फेल, फे स्लैश ल, फेल. ओल्ड, ओल स्लैश ड, डी. Right?
So like that you can write. Now you already know what is a sentence. Sentence क्या है basically? एक वाक्य होता है and that makes things clear to us. पूरा sentence से हमें चीज़ें clear होती हैं. But sentence का एक particular format होता है. Like for affirmative, it is like subject, then helping verb, then verb, like that. Okay? So you are given few sentences. The only thing is these sentences are jumbled. Jumbled मतलब mixed. तो आपको क्या करना है, उनको अनजम्बल करना है and you have to write them properly and also remember to use capital letters and full stops. आपको capital letters और full stop use करना है. The first one, out the of cat bag got the. Jumbled है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है, right? So how will you unjumble it? Look for the subject. इसमें subject क्या है? I can see the subject is the cat. So the cat, और remember हमेशा कोई भी sentence capital letter से चालू होता है. So the cat, the का T capital है and the cat. Now verb, so the cat got. Now remaining sentence, out of the bag. So what is the sentence? The cat got out of the bag. Now the next one, did Jack up and the Jill not go hill? Very confused, right? So subject look करो सबसे पहले. Subject क्या है? Jack and Jill. So subject क्या है? Jack. So sentence हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और वैसे भी जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. सो जैक, जे कैपिटल, एंड जिल, अगेन जे कैपिटल बिकॉज इट इज नेम. सो जैक एंड जिल. नाउ नेक्स्ट वन, यहां पे क्या है? नॉट गो एंड डिड. सो हेल्पिंग वर्ब, जैक एंड जिल डिड नॉट. ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड. एंड नेगेटिव है तो नॉट भी आया. सो जैक एंड जिल डिड नॉट गो अप द हिल. जैक एंड जिल डिड नॉट गो अप द हिल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? केव bears 3 in a lift. So again look for a subject. So subject क्या है? 3 bears. So 3, THREE, 3 bears, BEARS. So 3 bears. Then helping verb or main verb, lived. 3 bears lived in a cave. And full stop. सारे सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप लगाना, डोंट फॉरगेट. सो व्हाट इज दिस सेंटेंस? 3 bears lived in a cave. Now the next one, flute wonder went where I the. So subject I. We'll start with I. Then helping verb or main verb. So I wonder. I wonder. Then remaining sentence, where flute went. I wonder where flute went.